Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we study about morphology of flowering plants. Now, topics are gynoecium and placentation. First is gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and it is made up of one or more carpels. As gynoecium is a floral whorl, it is made up of carpels and carpel consists of these three parts, that is stigma, style and ovary. ठीक है, आप इस फ्लावर में देखिए. So here is the part of, yes, this is gynoecium part and it is consist of, this one is stigma and the stalk like structure, and this one basal part is the ovary. So this complete is made up of stigma, style and ovary. Next is ovary is the enlarged basal part. Here you can see this is ovary and it is the enlarged and the basal part on which lies the elongated tube, that is the style. So here you can see the elongated tube like structure, that is style, and style connects the ovary to the stigma. Yes, style connects the ovary to the stigma and stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for the pollen grain. देखिए, ड्यूरिंग पॉलिनेशन क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स एक सरफेस पे जाकर लाई करते हैं एंड द सरफेस इज स्टिग्मा. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलन ग्रेन फीमेल के किस पार्ट पे जाके लाई करते हैं. सो द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन इज द स्टिग्मा. ठीक है. सो here you can see the stigma, style and ovary. Stigma is the receptive part, style is the elongated tube like structure and ovary is the basal enlarged part. Next is each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. Now ovary के अंदर क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ovules. क्या होता है, so it's a flat cushion like structure. ठीक है, जिससे ओव्यूल्स अटैच होते हैं. ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज प्लेसेंटा. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, that is, this is the ovary part and here ovules are present, and this one the middle structure is placenta, cushion or flat like structure is placenta. Next is, yes, it is the complete structure of a carpel. Yes, so here is the stigma, receptive surface, style is the stalk like structure, and here the ovary part is, and ovules are present. Here you can see these are one or more ovules are present, and in which here you can see this is placenta, a flat cushion like structure is present. So it is the lateral section of the carpel and here is the transverse section of the carpel. Next is when more than one carpel is present. When more than one carpel is present, they may be free. अब carpels present होते हैं, अगर वो बहुत सारे present और वो free हैं, यानी कि एक दूसरे से fused नहीं है, जैसे कि lotus flower में, rose flower में होता है, तो उस term को बोला जाता है that is apocarpus, where carpels are free. Next is when carpels are fused, they are termed as syncarpus, because syn का meaning होता है fused. ठीक है. So here आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सभी फ्यूज्ड फॉर्म में, यानी कि सिनकार्पस ओवरी है ये. ठीक है. और यहाँ पर क्या है, कार्पल्स फ्री हैं, यानी कि ये एपोकार्पस का पिक्चर है. और ये बेसिक डायग्राम दे रखा है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. नेक्स्ट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स एंड इट विल फॉर्म फ्रूट. सो फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं एंड फ्रूट्स यानी कि ओव्यूल्स, ओवरी क्या बना लेगा, देखिए ओवरी बना लेगा फ्रूट इन फ्यूचर एंड ओव्यूल्स बनाएगा सीड. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. हेयर यू कैन सी डिफरेंट फ्रूट्स. सो जो फ्रूट वाला पार्ट है दैट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी एंड जो सीड्स प्रेजेंट इट्स फॉर्म फ्रॉम ओव्यूल्स.
Next topic, that is placentation. द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो कैसे अरेंज है, हाउ दे आर अरेंज इन द ओवरी, विद इन द ओवरी, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज placentation. Let's start. So there are different types of placentation: marginal placentation, axile placentation, parietal, basal, central placentation and free central placentation. Yes, इस पिक्चर में देखिए एक्चुअली द मीनिंग ऑफ प्लेसेंटेशन इज, यस, सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक फ्रूट का इन फ्यूचर जो बनाएगा, उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ओवरी में ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है. और ओव्यूल्स के इस ये देखिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फ्लैट सा कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अटैचमेंट प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और ये ओव्यूल्स. और जो ये डिफरेंट आपको खाली चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज लोक्यूल्स. They are known as locules. So here 3 locules. So this is trilocular in nature is present, right? So there are locules. This one is locule. This one, the free space is the locule, and this one is the septa. Septa is the separation basically, right? So here you can see the septa is present. Locules means different chambers are present. Ovules are present, and the attachment placenta is there. ओके, प्लेसेंटेशन के टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्यूटोर ऑफ द ओवरी. सो यहाँ पर क्या होता है कि प्लेसेंटा एक रिज बना लेता है, एक स्ट्रक्चर. ये देखिए ये एक पी का स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको दिख रहा होगा दिस वन, यस, दिस वन स्ट्रक्चर इज नथिंग बट रिज along the ventral suture of the ovary, and ovules are born on this ridge. Here you can observe यहाँ पर रिज आपको दिखाई दे रहा है रेड में, और इसके साथ ये क्या प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं. ये देखिए ये ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं जो रिज के साथ अटैच है एंड फॉर्मिंग 2 रोज. सो इसके एग्जांपल है पी, और ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है. यहाँ पर ओव्यूल्स क्या है, रिज के साथ अटैच है एक अरेंजमेंट में. सो दैट इज अ टाइप ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू इट, ठीक है, एंड इट इज अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. मैंने आपको बताया लोक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है. द प्लेसेंटेशन इज टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. Here you can see the axile placentation. when placenta is axile, यहाँ पर placenta present है, और ये देखिए ovules इसके साथ attach है. तो जो ये बीच में present है ये placenta है, और इसके साथ जो ये आप देख रहे होगे इस तरह के structures, ये सभी ovules हैं. Here you can see the live picture of a tomato. Yes, so here in the center, in the axile position, the placenta is present, and here this one is the locules. So these are the locules, ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया ब्लैक से, ये locules है. और इनके बीच में जो ये सीड्स प्रेजेंट है इन फ्यूचर, जो आप इनके सीड भी बोल सकते हो, वैसे ये क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है. तो ओव्यूल्स एक्साइल पोजीशन में एक्साइल प्लेसेंटा के साथ अटैच है. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, एंड एग्जाम्पल्स आर चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. क्लियर हुआ? बिल्कुल ईजी है, टफ नहीं है. अगर आप नेम से इस चीज़ को याद रखोगे तो इट विल ईजी फॉर यू. नेक्स्ट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन. The ovules develop on the inner wall of the ovary and on the peripheral part. Periphery क्या होता है कि बाहर की तरफ, ठीक है. Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of a false septum. बेसिकली उसने कहा कि यहाँ पर एक ही लोक्यूल, एक ही चैम्बर प्रेजेंट, आप देख पा रहे होगे इस पिक्चर में कि ये एक ही चैम्बर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक फोल सेप्टम भी बन जाता है किसी किसी में, जिससे वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं. एंड हेयर यू कैन सी द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन दी पेरीफेरी, ठीक है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन दी पेरीफेरी पार्ट. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मस्टर्ड एंड argemone, and this is the picture of argemone, that is the parietal type of placentation.
Next is free central placentation. When the ovules are born in the central axis and septa are absent, अगर सेंटर पे ही ओव्यूल डेवलप हुआ है, यहाँ कोई सेप्टा यानी कि सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ आप देखो कोई भी सेप्टा इस तरीके से कोई सेपरेशन है नहीं है, यहाँ पर सेंटर में ही ओव्यूल्स प्रेजेंट है और इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये याद रखना कि सेप्टा इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है डायंथस फ्लावर्स, प्रिमरोज, इनके एग्जाम्पल्स हैं। प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल, ये पिक्चर में डायंथस फ्लावर्स के फ्लावर्स हैं, डायंथस फ्लावर्स हैं और इसमें फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होता है। Next is basal placentation. In basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary. आप नेम से भी इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि it is related to basal means it is related to base and a single ovule is attached to it. Or examples हैं sunflower, marigold. So these are the basal placentation where ovules or develops at the base of ovary. So this is basal placentation. Clear हुआ?